Hello friends, a very warm welcome to Anna for English, a platform where we prepare to perform. My name is Anamika. Today in this video, we are going to discuss the possessive case or the genitive case. What is a possessive case? Possession means what? Possession means ownership. So the possession means the ownership case. Alright? For example, if I say Anamika's viewers, it means Anamika के viewers. ठीक है? Or another example, if I say Dolly's book, it means Dolly has a possession or the ownership on the certain book. This is all about possession. But इतना ही नहीं है, क्योंकि possessive case को grammar के लिहाज से, especially competitive exam के लिहाज से अगर हम पढ़ें, तो इसमें कई सारे rules, कई सारे points ऐसे होते हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं. चलिए डिस्कस करते हैं एक एक चीज को. सबसे पहली चीज कि जो ये possessive case है, इसे हम दो तरीकों से बनाते हैं. फर्स्ट ऑफ देम इज, हमने लिखा एक नाउन और उसके साथ में एपोस्ट्रोफी एस ऐड कर दिया. दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग. इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं तो आई कैन से अनामिकाज, आई कैन से श्रुतिज, आई कैन से डॉलीज, or any other example I can say. One of the example which I want to mention is tapas. Don't wonder कि मैंने यहाँ पर केवल एपोस्ट्रोफी क्यों लगाया है, एस क्यों नहीं लगाया. इसको ही हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. दूसरे तरीके से जो हम पोजेशन देते हैं या ओनरशिप देते हैं, वो हम कैसे देते हैं? वी यूज ऑफ प्लस नाउन. ये दो तरीके हो गए हैं. ऑफ प्लस नाउन के एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो आई कैन से लेग्स ऑफ द टेबल. आई कैन से. अब इन दोनों तरह के एग्जाम्पल से एक चीज आपको थोड़ा सा समझ में आई होगी या आपके दिमाग में क्लिक करनी चाहिए. दैट इज एपोस्ट्रोफी एस जनरली इट इज गिवन टू ह्यूमंस. एपोस्ट्रोफी एस जनरली इट इज गिवन टू ह्यूमन and of plus noun is generally given to inanimate things. Let's write them here. This case is maximum or generally, not always, it is generally used for humans, and of plus noun it is generally used for inanimate things. Alright, now let's discuss this thing. Apostrophe S. Okay, these are very common example. Anamika, Dolly, Shruti. But here, which is different is tapas. Why it is different? Let's take some another proper nouns. Some more names which are, if I mention them here, I would like to write again. Anamika, Shikha, Alex, James, Dinesh, Priyesh, and some more names like Parvez, Arbaz, Shehnaz, and if I would like to add some more names, what I can say, again I would like to write Tapas and Tapsi. So I hope. One more name, Priyansh, because I have to make some examples, so I have to think of certain names. Priyansh, Priyanshu, or Priyanshi, or Priyansha. So I hope these are sufficient. Now try to make their possessive case. Try to give ownership. Try to give apostrophe S to all of them. Right? Please speak aloud with me so that what the machinery works behind this thing
automatically works in your mind, right? Anamika, anamikas, can I say anamikas? It is anamikas. Shikha, can I say shikhas? Yes, I can say shikhas. Please feel free because no one else is listening to you, so you have to speak aloud so that the concepts will clear. जब तक आप तेज नहीं बोलोगे तब तक प्रोनाउंसिएशन के और फ्लुएंसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे. शर्माने की, झिझकने की कोई जरूरत नहीं. आप अपने घर में बैठे हैं, आप अपने कमरे में बैठे हैं, आप आराम से इन नामों को बोल सकते हैं, राइट? एलेक्स. अच्छा, जब ये नाम आप बोलेंगे तो आपके दिमाग में अपने आप या तो फ्लुएंटली आप उस नाम को बोल देंगे और नहीं तो आपको कहीं पे एक जर्क, एक ब्रेक लगेगा, इनकन्वीनियंट लगेगा बोलने में, या हम कह दें अच्छा नहीं लगता बोलने में. ठीक है? एलेक्स, एलेक्स के साथ मैं एपोस्ट्रोफी एस दे दूं क्या? एलेक्सिस, एलेक्सिस. आप ऐसा बोलते हो क्या? एलेक्सिस. जेम्स, तो क्या मैं ऐसा बोलती हूँ? जेम्सेस, है ना? दिनेश, रमेश, महेश, गणेश, गोपेश, मैं क्या बोलती हूँ कि दिनेशेस, रमेशेस, महेशेस. डू आई से लाइक दिस? आप बोल के देखिए एक बार. दिनेश, दिनेशेस. एक बार के लिए हम लिख लेते हैं. प्रियेश, कैन आई से प्रियेशेस? Priyesh's house is very beautiful. Priyesh's girlfriend is very beautiful. She's very pretty. She's very intelligent. Priyesh's. No. लिखते जाइए एक बार, लिखते जाइए. परवेज, कैन आई से परवेजेस? परवेजेस, परवेजेस. थोड़ा कुछ अजीब ही लग रहा है. अरबाजेज, शहनाजेज, तपसेज. Again, it is where it is tapas, tapases. See the picture here and here. This is the basic difference which we have to understand. Tapsi, can I say tapsis? Tapsis, tapsis, tapsis. Yes, it is, it is. बोल सकते हैं हम. Now the words are Priyansh. Can I say Priyansh? Priyanshes, Priyanshes. अच्छा नहीं लग रहा कुछ. Priyanshu. Can I say Priyanshus? This is Priyanshu's gift. This is Priyanshu's gift. Priyanshu's gift. कुछ अजीब लग रहा है. Priyanshis, I can say. Priyanshas, I can say. Now, what you have to do, जो सारे वर्ड्स आपको बोलने में अजीब लग रहे थे या जिनके अंदर फ्लुएंसी नहीं आ रही थी, प्लीज आप उन्हें मार्क कीजिए, मेरे साथ कीजिए मार्क. अनामिका, अनामिकाज, यस. शिखा, शिखाज, यस. एलेक्स, एलेक्सिस, एलेक्सिस. जेम्स, जेम्सेस, जेम्सेस. दिनेश, दिनेशेस, दिनेशेस. प्रियेश, प्रियेशेस. दिस इज प्रियेशेस हाउस. परवेज, परवेजेस, परवेजेस. नहीं अच्छा लग रहा. अरबाजेज नहीं अच्छा लग रहा. शहनाजेज नहीं अच्छा लग रहा. तपसेज अच्छा नहीं लग रहा. बट तापसी, यस, तापसीज, तापसीज. Tapsi's house is in Mumbai. Tapsi's mother is a teacher. Yes, we can say this. प्रियांश, अगेन जैसा प्रियेश था, दिनेश था, महेश था, रमेश था, गणेश था, वैसा ही क्या आ गया है अब एक नया नाम, प्रियांश. तो प्रियांशेस, ये भी अच्छा नहीं लग रहा. हम इन सबको मार्क कर रहे हैं और अब इन सब के बीच के डिफरेंस को समझेंगे. दो थोड़ा सा अजीब या मोनोटोनस आपको लग रहा होगा, बट इट इज रियली 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 वेरी इंटरेस्टिंग. कीप ऑन वॉचिंग, स्टे ट्यून, देखते रहिए. Priyanshu, yes, we can say Priyanshus. Priyanshi, yes, we can say Priyanshis. Priyansha, yes, we can say Priyanshas. बोल सकते हैं. जैसे अनामिकाज होता है, शिखाज होता है, कविताज होता है, वैसे प्रियांशाज भी हो सकता है. इफ इट इज अ नेम, किसी का नाम मैं रख दूं तो आई कैन से प्रियांशाज bike is very beautiful. Priyansha's scooty is very beautiful. Priyansha's car is very wonderful. I can say this thing. Now, let's do one thing. ये जो नाम हमने टिक करके रख लिए हैं, देखो ये बोला जा सकता है, अगेन ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है, ये बोला जा सकता है. तो we have these names. ये जो बॉक्स के अंदर नेम्स है ना, ये क्यों नहीं बोले जा रहे? लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग. होता क्या है, साउंड्स होती हैं, जो हमारे वोकल कॉर्ड्स में से साउंड्स निकलती हैं, उन साउंड्स में से एक साउंड होती है हिजिंग साउंड. ये हिजिंग साउंड क्या चीज? हिजिंग साउंड को अगर हम समझें तो हिजिंग साउंड होती है वो वाली साउंड जिसके एंड में से ये आवाज आती है. कौन सी आवाज आती है?
अगर मैं कहूं तो यहां पर हिजिंग साउंड, वो वाले वर्ड्स जिनको प्रोनाउंस करने पर, जिनको बोलने पर, जिनका उच्चारण करने पर एंड में आपको या तो स या श या एक्स बोल देते हैं। एक्स मैंने लिखा है, यहां पर एक्स भी साउंड आया है, या फिर जी की साउंड आती है, जैसे जी फॉर जीब्रा वाली ज साउंड, जैसे ये रहे नाम। अगर कोई नाउन को बोलने पर ये वाली साउंड आती है तो हम उसे कह देते हैं हिजिंग साउंड। और एपोस्ट्रोफी एस का बेसिक सा रूल क्या है कि अगर किसी नाम को बोलने पर हिजिंग साउंड आती है तब आप वहां पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, तब आप वहां पर केवल और केवल एपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यही केस मैंने तपस में यहाँ पे किया था, तपस, राइट। तपस्सिस हमने नहीं लिखा था, तपस ही तो लिखा था, राइट। इतनी चीज क्लियर है। बट अगर इस किसी भी हिजिंग साउंड के साथ में, इनमें से किसी भी हिजिंग साउंड के साथ में हम ऐड कर देते हैं एक वॉल, अगर एक वॉल ऐड कर देते हैं तो साउंड अब ये वाली दब जाती है, सप्रेस हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। इसकी जगह अब साउंड जो सुनाई देती है वो किसकी सुनाई देती है, किसी न किसी वॉल की साउंड सुनाई देती है। फॉर एग्जाम्पल तपस साउंड किसकी आ रही है, एस की, ठीक है। प्रियांश साउंड किसकी आ रही है, श की। एलेक्स साउंड किसकी आ रही है, अगेन एक्स में से भी साउंड तो एस की ही आती है। परवेज साउंड किसकी आ रही है, जी की। बट अब मैंने क्या किया, तपस में ऐड कर दिया मैंने आई, मैंने तपस से नाम थोड़ा सा चेंज कर दिया, तापसी बना दिया। अब साउंड स की ड्रॉप हो गई है और साउंड किसकी हाईलाइट हो गई है या किसकी प्रोलॉन्ग्ड साउंड आ रही है, ई की। बोल के देखो तेज, तापसी, ठीक है। प्रियांश नाम था, मैंने एक वॉल ऐड कर दिया यू, अब साउंड किसकी आ रही है, प्रियांशु। अब साउंड श की वहीं पे ड्रॉप हो गई, कट गई, स्टॉप हो गई है और आपको आवाज किसकी आ रही है, शू, ऊ की। एंड किस पे हो रहा है, श पे या ऊ पे, अपने आप बोल के देखिए। द वर्ड प्रियांशु, अब उसमें से आवाज आ रही है ऊ की। मैंने वहां पर ऊ, यू की जगह वॉल लगा दिया है आई, तो अब साउंड आ रही है ई की। बोल के देखिए तेज, प्रियांशी, अब साउंड ई की आ रही है। मैंने वहां पर आई की जगह लगा दिया ए, तो अब साउंड आ रही है अ की, प्रियांशा, प्रियांशा। अब श नहीं सुनाई दे रहा, आ, एंड में आवाज किसकी आ रही है, आ की। तो अब जो बेसिक सा थंब रूल बन गया वो क्या बन गया है, हम लिख लेते हैं हिजिंग साउंड, तो वहां पर हमें ऐड करना है केवल एपोस्ट्रोफी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हिजिंग साउंड प्लस कोई भी वॉल लगा रखा है तो वहां पर ऐड हम कर देंगे एपोस्ट्रोफी एस। बट अगर कोई भी ऐसा प्रॉपर नाउन या नाउन हमने बोला जिसमें हिजिंग साउंड है ही नहीं, यानी कि वो क्या है अब विदाउट हिजिंग साउंड, तो हम ऐड कर देते हैं एपोस्ट्रोफी एस। दिस इज द बेसिक फंडा, याद रहेगा। हिजिंग साउंड only apostrophe, hissing sound plus vowel we can add apostrophe s. Any sound which is without hissing sound we have to add apostrophe s. This is a very basic thing. अब इसी चीज पर हमारे आगे के सारे possessive case based होते हैं, found होते हैं, right? डिस्कस करते हैं उन सब केसेस को डिटेल में। चलिए फ्रेंड्स, अब एक और चीज डिस्कस करते हैं, ठीक है। डिस्कशन से पहले you must have read somewhere, what? You must have read this thing, right? Or this thing, or this thing, right? अब इनमें से सही क्या है, इनमें से सही कौन सा है? अगर आप सुनते हो, इफ यू आर लिसनिंग टू समथिंग, और अगर आपने सुना है बॉयज हॉस्टल
तब सही है। अगर आपने सुना है गर्ल्स हॉस्टल तब भी ये सही है। और अगर आपने सुना है चिल्ड्रंस स्कूल तब भी ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि हम सिर्फ सुन ही तो रहे हैं और सुनने में तो कहीं ग्रामर आती ही नहीं है, राइट? सुनने में तो कोई ग्रामर का काम ही नहीं है ना, उस लिहाज से तो ये बिल्कुल ही सही है। बट अब अगर हम बात करें कि लिखा हुआ क्या है, तो लिखे हुए के हिसाब से मुझे क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? मुझे लिखना पड़ेगा बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स स्कूल, एंड यहां पर चिल्ड्रन के बाद में एपोस्ट्रोफी एस आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब भी कभी आप सिंगुलर नाउन पर एपोस्ट्रोफी देते हो, सिंगुलर नाउन पर एपोस्ट्रोफी दी आपने, तो आप बोल सकते हो बॉयज बुक। कोई लड़का है, लड़के की बुक, आई कैन से दिस, आई कैन से गर्ल्स पेरेंट्स, सिंगुलर नाउन है। बट जैसे ही आपने इस सिंगुलर नाउन्स का, इन दोनों ही सिंगुलर नाउन्स का प्लूरल बना दिया, प्लूरल बनाते ही आवाज कैसी आई है? साउंड हो गई है हिजिंग साउंड। जैसे ही आप बॉय का प्लूरल बनाते हो या फिर गर्ल का प्लूरल बनाते हो, आवाज क्या हो जाती है? हिजिंग साउंड आ जाती है। और क्योंकि हिजिंग साउंड आ जाती है, तो हिजिंग साउंड के बाद में हम एक और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाते, केवल एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं। उसकी वजह से अब ये सही है। कम टू चिल्ड्रंस स्कूल। चिल्ड्रंस, देखो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, और चिल्ड्रन का भी कोई प्लूरल होगा क्या? नहीं ना, बिकॉज चिल्ड्रन इटसेल्फ इज अ प्लूरल नाउन। पर चाइल्ड से चिल्ड्रन बनाते वक्त साउंड तो चेंज नहीं हुई ना, हिजिंग साउंड तो नहीं आई ना, इसीलिए हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। अनदर एग्जाम्पल, मैं लिखूं इसको अगर ऐसे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया विमेन। और विमेन मैंने आपको सिखाया था, जब भी आवाज वी की आती है, विमेन हम बोलते हैं, तो वो प्लूरल हो जाता है। आवाज विमेन की आ रही है, एस की साउंड नहीं आ रही प्लूरल बनाते वक्त, क्योंकि हमने एक और एस ऐड नहीं किया, स्पेलिंग के अंदर वॉल चेंज किया है हमने। ये हमने पहले प्लूरल बनाने के रूल्स में पढ़ा है, आप जाकर के पीछे की वीडियोस में एक बार चेक कीजिए, है ना। जब मैंने वुमेन से विमेन बनाया तो ये प्लूरल तो बन गया, बट प्लूरल बनने के बाद इसमें हिजिंग साउंड नहीं आई है, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस हम लगा देंगे, राइट? ऐसा हम लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? तो अब कहीं भी आपको देखे बॉयज हॉस्टल, अच्छा आजकल कई जगह हॉस्टल्स के आगे या ऐसा मान लो कि पीजी बन जाते हैं, तो क्या लिखा होता है? ऐसा लिखा होता है बॉयज हॉस्टल। क्या लिख देते हैं? बॉयज हॉस्टल। क्या केवल एक ही लड़के का हॉस्टल है क्या? हॉस्टल में तो 10, 5, 20 कितने भी लड़के रह सकते हैं। ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं लिखते। हम ऐसा भी नहीं लिखते, हम ऐसा भी नहीं लिखते, क्योंकि ऑलरेडी हिजिंग साउंड आ रही है, तो एक और एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। हम क्या लिखते हैं? प्लूरल में लिखने के बाद केवल पोस्ट्रोफी लगा देंगे, केवल पोस्ट्रोफी आएगा, एस नहीं आएगा। इतनी चीज क्लियर है? ओके, अब बढ़ते हैं आगे और अब हम डिस्कस करेंगे पजेसिव केस में डबल पोजेशन, यानी कि एक ही नाउन के ऊपर दो जनों का पोजेशन है, तो वहां पर हम क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या कभी एक ही नाउन के ऊपर दो जनों का पोजेशन हो सकता है? हो सकता है। जैसे हमारा घर, मैं भी रहती हूँ, मेरा भाई भी रहता है, दो जनों का पोजेशन हो गया, पापा भी रहते हैं, मम्मी भी रहते हैं। अब अगर मुझे कोई एड्रेस मांगेगा तो मैं यही एड्रेस दूंगी। मेरे भाई से कोई एड्रेस मांगेगा, आई हैव टू गिव द सेम एड्रेस, ही हैज टू गिव द सेम एड्रेस, मेरी सिस्टर हैज टू गिव द सेम एड्रेस, माई फादर हैज टू गिव द सेम एड्रेस, यानी कि वो घर हम सबका है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहां पर एक नाउन पर एक से ज्यादा लोगों का पोजेशन होता है, उसी को हम कह देते हैं डबल पोजेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लिखूं जेम्स एंड स्मिथ, ये दो जने हैं, एक का नाम है जेम्स और एक का नाम है स्मिथ। ठीक है, जेम्स एंड स्मिथ, अब दोनों का एक ही घर है। ठीक है,
मैंने कुछ ऐसा एग्जाम्पल बना दिया, जेम्स और स्मिथ घर इज नियर अ पोस्ट ऑफिस। उससे कोई मतलब नहीं है आगे, पर समझ में आ रहा है कि जेम्स और स्मिथ का घर पोस्ट ऑफिस के पास में है। अब मुझे पोजेशन क्या देना होगा? कैन आई राइट जेम्स एंड स्मिथ, आवाज आ रही है स्मिथ, क्या ये हिजिंग साउंड है? कैसा पोजेशन हम देंगे? अगर ये हिजिंग साउंड होता तो केवल एपोस्ट्रॉफी देते, क्योंकि ये हिजिंग साउंड नहीं है तो आई कैन से स्मिथ्स। अब बोल के देखो, स्मिथ्स बोला जा रहा है आराम से, है ना। वो एच वाला केस किसका था? वो एच वाला केस था मैं लिख दूं अगर उसमें प्रियेश, गणेश, महेश, दिनेश, वहां पर हम नहीं बोल सकते। स्मिथ में तो हम बोल सकते हैं। क्या मैं ऐसा लिख दूंगी? अगर मैंने दो अलग अलग नाउन जो एंड से जुड़ी है और दोनों की ओनरशिप एक ही चीज पर है, ऐसा केस अगर है और एपोस्ट्रॉफी वाली चीज दोनों जगह दे दी है, तो ये केस गलत हो जाएगा। यहां पर हमें ध्यान रखना है कि जब भी कभी हम एंड से दो नाउन को जोड़ करके ओनरशिप देते हैं किसी कॉमन चीज पे, तो पोजेशन वाला एक्सप्रेशन केवल बाद वाली नाउन पे ही आएगा, पहले वाली नाउन पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जेम्स का और स्मिथ का घर दोनों का एक ही है। कैसे पता चला आपको एक ही घर है? पता चला हमको, ये जो होम लिखा है ना, ये सिंगुलर लिखा है, होम्स नहीं लिखा। पहली चीज, क्योंकि ये होम कैसी नाउन है? सिंगुलर नाउन है, इसीलिए वर्ब हमने कैसी ले ली है? सिंगुलर ले ली है। ये सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपको अपने आप समझ में आते जाएंगे। ठीक है, अब हमने जो ये वर्ब लिया है ना, ये इनके हिसाब से नहीं लिया, ये हमने किसके हिसाब से लिया? नाउन के हिसाब से लिया, राइट। बट फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए सोचो कि जेम्स का घर अलग है और स्मिथ का घर अलग है, लेकिन दोनों के दोनों घर ही पोस्ट ऑफिस के पास में है। दोनों के घर पोस्ट ऑफिस के पास में है। तब हम क्या लिखेंगे? तब हम लिख देंगे जेम्स, एपोस्ट्रोफी लगा दिया तो जेम्स का समझ में आया। दोबारा घर नहीं लिखेंगे, दोबारा होम नहीं लिखेंगे, होम हम कॉमन लेके बाहर ले जाएंगे। मैथ्स में करते हैं ना हम, ब्रैकेट्स के बाहर कॉमन ले लिया तो वो दोनों के लिए इंक्लूड हो जाता है। जेम्स एंड स्मिथ्स। अब मुझे होम लिखना है क्या? दोनों के अलग अलग घर है तो मैं हाउसेज लिख सकती हूँ, होम्स लिख सकती हूँ। ठीक है, मैं क्या लिख दूंगी? नियर अ पोस्ट ऑफिस। अब आपको क्या समझ में आता है? अब मैंने यहां पे भी एपोस्ट्रोफी लगा दिया, यानी कि यहां पे भी पॉसेसिव केस है, जेनेटिव केस है, ओनरशिप का केस है। यहां पे भी जेनेटिव केस है, ओनरशिप का केस है, पॉसेसिव केस है। एंड यहां पर जो मैंने नाउन लिखी है, होम्स भी लिख सकते हो, हाउसेस भी लिख सकते हो। दोनों के कॉन्सेप्ट थोड़े से चेंज हो जाते हैं, विल डिस्कस इट लेटर। और अगर मैं कहूं तो आपसे हाउस वाला वर्ड यहां पर अगर यूज करें तो ज्यादा अच्छा होगा। सेम हियर, यहां पे भी हमको हाउस ही लिख लेना चाहिए था। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूं? जेम्स का और स्मिथ का। अब मैंने का नहीं बोलूंगी, मैं जेम्स का एंड स्मिथ का नहीं बोलूंगी, बिकॉज नाउन जो है वो यहां पर प्लूरल है। एक बार के लिए इसे हटा देते हैं, कंफ्यूज ना हो जाए। तो अब मुझे क्या बोलना पड़ेगा? जेम्स एंड स्मिथ के घर नियर पोस्ट ऑफिस है। जेम्स एंड स्मिथ के घर नियर पोस्ट ऑफिस है। क्यों? क्योंकि नाउन जिसके ऊपर हमें ओनरशिप देनी थी, अब वो नाउन ही प्लूरल हो गई है, क्योंकि दो अलग अलग लोगों के घर है तो दो अलग अलग घर हो गए, दो अलग अलग नाउन हो गई, दो अलग अलग नाउन हो जाएंगी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? प्लूरल लिखना पड़ेगा। नाउन अगर यहां पर प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी हो गई है? प्लूरल। इतना ध्यान रहेगा। मैं और मेरा भाई, इफ वी बोथ आर लिविंग इन अ सेम हाउस, तो हम क्या लिखेंगे? तो उस केस में हमको लिखना पड़ेगा अनामिका एंड उत्कर्ष हाउस इज इन जयपुर। अगर हम दोनों का घर अलग अलग होता, पर होता जयपुर में ही, तो मैं लिख देती अनामिकाज एंड उत्कर्ष हाउस इज इन जयपुर। तो गलत हो जाता, हाउसेज आर इन जयपुर। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया, गलती हो गई। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ये केस आपको समझ में आया?
अब एक चीज ध्यान देना, अगर यहाँ पर जेम्स का नाम बाद में लिखूं और स्मिथ का नाम पहले लिखूं, यहां पे लिख दूं मैं स्मिथ एंड यहां पर लिख दूं मैं जेम्स, तो क्या हो जाएगा? क्योंकि अब जिस नाउन पर, बाद वाले नाउन पर हमें पोजेशन शो करना है, तो उस केस में हमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी देना है। जैसी बाद वाली नाउन होगी ना, वैसा ही पोजेशन हमको दे देना है। अगर वो हिजिंग साउंड में है तो केवल एपोस्ट्रोफी आएगी, अगर वो विदाउट हिजिंग साउंड है या हिजिंग साउंड प्लस वॉल साउंड है तो फिर एपोस्ट्रोफी एस दोनों आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों पे हमें देना है तो दोनों के हिसाब से हम दे देंगे। इतना क्लियर है? एक नाउन पे दो जनों की ओनरशिप, तो हम बाद वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी देंगे। दो अलग अलग नाउन पे दो अलग अलग जनों की ओनरशिप, तो हम दोनों लोगों को ओनरशिप के लिए हम एपोस्ट्रोफी केस के हिसाब से जो उनका केस बनता होगा वैसा दे देंगे। इतना क्लियर है? आई होप ये क्लियर है एंड आई नो ये क्लियर है। अब हम आगे पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल। So guys, this is all about possessive or the genitive case of a noun. I'm pretty sure आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, but still अगर आपको लगता है कहीं कहीं कोई आपको डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हैं। बहुत सारे मेरे पास में मेल्स आए हैं, कमेंट तो पता नहीं क्यों आप करते नहीं हो। कमेंट भी किया करो, जो भी क्वेरीज आपकी हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे तो बाकी लोगों के डाउट्स भी क्लियर होंगे। मेल जब आप करते हो तो वहां पे 101 सेक्शन चलता है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट बहुत लंबा है या जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, तब आप मेल करो, अदरवाइज कमेंट करना कमेंट सेक्शन में इज द बेस्ट ऑप्शन। बहुत सारे मैसेजेस भी मेरे पास में आए हैं। आप कमेंट सेक्शन में आप अपने ये भी कमेंट कर सकते हो कि कौन से टॉपिक पर आपको अगला वीडियो चाहिए। बट अभी जो भी मेरे पास में मेल्स और मैसेजेस आए हैं उनके बेसिस पर रीड लेवल का जो एग्जाम होता है उसमें कुछ ना कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच आती हैं, राइट? तो उस फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए कहीं ना कहीं से रिक्वेस्ट आई हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रीड लेवल के, जो रीड के सिलेबस में स्पेशली मेंशन्ड है, वो वाली फिगर्स ऑफ स्पीच। ठीक है? तब तक के लिए आप बने रहिए आपके अपने चैनल से, एना फॉर इंग्लिश, अ प्लेटफॉर्म वेयर वी प्रिपेयर टू परफॉर्म। मिलेंगे कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, नमस्ते।